सूची के अनुसार वस्त्र मंत्रालय के कर्म संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 4, Shri Jitin Prasad. Respected Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name as serial number 4 in the revised list of business for today. Item number 5, Shri Ramdas Athavale. Respected Madam, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 5 in today's list of business. Thank you. Item number 6, Shri Arjun Ram Meghwal. धन्यवाद ऑनरेबल मैम चेयरपर्सन। मैं आपकी अनुमति से जो क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सनी के नाम से जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से संबंधित हैं और जो क्रम संख्या 6 पर अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Item number 7, Shri B.L. Verma. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 8, Shri Giriraj Singh. मैं आपकी अनुमति से अपने साथी श्री पवित्र मार्गेट्रा जी की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची के अनुसार वस्त्र मंत्रालय के कर्म संख्या 8 पर उल्लेखित कागजातों को सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 9, Kangana Ranaut ji. Ma'am, with your permission, I wish to present the 25th and 26th reports of the Standing Committee on Communication and Information Technology as listed against my name. Item number 10, Dr. Shashi Tharoor. I wish to present the 12th and 13th reports, Hindi and English versions of the Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha, as listed against my name at serial number 10 in today's revised list of business. Item number 11, Shri B. Mahtab. Shri Thank you, Arun Madam. I Reddy. rise to present the following reports. Hindi and English version of Standing Committee of Finance. 33rd report on demand for grants 26-27 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Expenditure, Public Enterprise and Investment and Public Asset Management. 34th report on demand for grants 26-27 of the Ministry of Planning. 35th report on demand for grants 26-27 of the Ministry of Statistics and Program Implementation. Thank you. Item number 12, Shri Baswaraj Bommai. Madam, I rise to present 15th, 16th, 17th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Labour, Textile, Skill Development as listed against my name in today's list of business. Item number 13, Shri Janardhan Singh Sigriwal. सभापति महोदया, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुदानों की मांगे 2026-27 के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी अस्थायी समिति 2025-26 के 7वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। Item number 14, Shri Narayan Das Ahirwar. अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 10वां और 11वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। Item number 15, Shrimati Priyanka Gandhi Vadra. मैं आज की कार्यावली में मेरे नाम के सामने उल्लिखित विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 255वां, 256वां, 257वां और 258वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। Item number 16, Shri Kiran Rijiju. महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ कि यह सभा 16 मार्च 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से सहमत है।
प्रश्न ये है कि यह सभा 16 मार्च 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें। जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। नियम 377। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 18, श्री पीयूष गोयल। Madam, with your kind permission, I rise to move for leave to withdraw the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business as reported by Select Committee. प्रश्न यह है कि विधेयक को वापस लिया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें। जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक को वापस लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक वापस ले सकते हैं। Madam, I withdraw the bill. आइटम नंबर 19, रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। श्रीमती शताब्दी रॉय। सर, रेल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कुछ बोलना है और बहुत एमपीज बोल भी दिए हैं, लेकिन वो मैं सिर्फ 4-5 पॉइंट ही बोलना चाहती हूँ, टाइम की कमी है। मैं रेल की पेंट्री सर्विस के लिए बोलना चाहती हूँ। जैसे 1000 किलोमीटर जाने वाला ट्रेन में पेंट्री सर्विस जरूरी है, लेकिन 341 ट्रेन में ऐसा है ही नहीं। एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ, 13005 हावड़ा अमृतसर मेल 1910 किलोमीटर 38 आवर्स चलते, वहाँ पे पेंट्री सर्विस है ही नहीं। 12202 गरीब रथ एक्सप्रेस 26 आवर्स चलते, उसमें भी नहीं है। इसमें और एक स्टोरी है। जब रेल अभी सोच रहे ये पेंट्री कार उठा के आउटसोर्स कर दे, वो अच्छी बात है, लेकिन जिस ब्रांडेड कंपनी से या ब्रांडेड रेस्टोरेंट उसमें से ये लोग बना रहे खाना, लेकिन उसमें आ नहीं रहा। जो नाम से हम लोग खाना खा रहे, जो इस ब्रांड है इसमें, लेकिन वो लोकल खाना भी वो लोग नहीं बना के, लोकल से बना के वो खाना सर्व कर रहे। ये हाइजीन भी नहीं है। और एक काम हो रहे हैं, जैसे आप ट्रेन में चढ़े, आपके पहले स्टेशन में कोई आके आपका खाना का रिक्वायरमेंट क्या है बोल के जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेशन में लोकल किसी से खाना बना के देते। इस हाइजीन में रेल को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आती हूँ वेट लिस्ट। आरटीआई से ये पता चला 2021-24 तक, जनवरी तक वेट लिस्टेड इनकम, मतलब मैंने टिकट खरीदे 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, मेरा वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर है 16 या 10। जब ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली मैं टिकट कैंसिल करूंगी। तब भी आप कैंसिलेशन फीस भी काट रहे हो। इसका मतलब आप टिकट कंफर्म आप नहीं दे पा रहे हो। मैं टिकट लेना चाहती हूँ, फिर भी आप टिकट का उसके में से पैसा ले रहे हो, जो उसमें इनकम आप सिर्फ सुन लीजिए। 2021 से 24 तक 1229.85 करोड़ इनकम किया है, जो ऑलमोस्ट 34-35 लाख टिकट कैंसलेशन हुआ है। 2021 में 242.68 करोड़ इनकम किया,
वो बढ़ के 2023 में 505 करोड़ इनकम किया। मतलब ये बिजनेसमैन की तरह जिस शेयर में ज्यादा इनकम होता है उसी शेयर में डालो। रेल भी वही कर रहे, कैंसलेशन में इतना इनकम हो रहे तो कैंसलेशन में ही ज्यादा जोर दे रहे। अभी दूसरा, अभी जो आ रहे हैं वो मैं गवर्नमेंट डाटा और आरटीआई से का बात कर रही हूँ। 2019 से 2020 1313 करोड़ इनकम सिर्फ आया डायनामिक प्राइस से। 1669 करोड़ इनकम फ्रॉम तत्काल, 603 करोड़ फ्रॉम प्रीमियम तत्काल। आप देखिए, आप अगर तत्काल से टिकट लेंगे, आप जो बोलते हैं सीनियर सिटीजन के लिए आप लोअर बात देंगे, ऐसा होता नहीं है। 80 इयर्स के सिटीजन, सीनियर सिटीजन को भी अपर बात मिल रहे, और जिसके पास पैसा है वो यंग लड़का कल टिकट करके तत्काल में पैसा देके लोअर बात मिल रहे। ये जो मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ मेरा बात नहीं है, पब्लिक जो कंप्लेन किया उसी बात मैं यहाँ पे उठा रही हूँ। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है 81 के एक औरत वो गिर के उसका पैर टूट भी गया, ये भी इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए। अभी 2021 से 2022 तक सितंबर में 6 मंथ्स में सिर्फ इनकम देखिए 240 करोड़ फ्रॉम डायनामिक प्राइसेस, 353 करोड़ तत्काल से, 89 करोड़ प्रीमियम तत्काल से। आप देखिए, आप एक तो आप उसमें से काट रहे वेटिंग लिस्ट से, फिर आप टिकट कंफर्म नहीं कर पा रहे, वहां पे आप टिकट नहीं मिल रहे, लेकिन तत्काल, प्रीमियम तत्काल, डायनामिक प्राइस से आप इतना इनकम कर रहे। फिर आप बताइए, आप जब अगर आपको पैसा है तो आप अच्छा से ट्रैवल कर सकते हो। गरीब के लिए ये सरकार क्या करे ये जानना भी बहुत जरूरी है। अभी मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगी। रात 5 পর থেকে 7টা অবধি বর্ধমান থেকে রামপুরহাট পাকুড় লাইনে কোনো ট্রেন নেই। বর্ধমান 3 পাহাড় প্যাসেঞ্জারের আগের মতো সকাল 6:30 চালু করার দাবি জানাচ্ছি। বন্ধ ট্রেন পুনরায় চালু করার জন্য মোগলসরাই বারাণসী শিয়ালদা এক্সপ্রেস, বর্ধমান মালদা প্যাসেঞ্জার, রামপুরহাট শিয়ালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস পুনরায় চালু করার আবেদন করছি। আসানসোল থেকে মালদা টাউন পর্যন্ত একটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন প্রতিদিন চালানোর অনুরোধ করছি। বন্দে ভারত ট্রেন বোলপুর